सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video, we have discussed about a lot of things regarding to just your alcohol. Now, time to discuss about the phenol, the second topic as an important topic. So, first of all, we'll go with the what is the meaning of phenol and who discovered the phenol, so on. So, this is about the phenol. The second topic as a phenol. What is the meaning of phenol? Then we can discuss in the just basic concept of the alcohol. We can say when OH group directly attached to benzene ring, those are known as just your phenol. So this is the about phenol. How? This is the as follows. If we'll go with the example, then here is the OH directly, one of the OH. There may more than one OH like this. There may as follows. This is the OH, OH and OH. There may substituent also like this. This is the OH and CH3. There may more than one substituent as follows. But particular बात करें तो इन सब में OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है. सो ये अपने आप में सबके सब फिनोल का एग्जाम्पल होंगे. ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो. नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी. जस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द जो फिनोल है, इट वाज डिस्कवरी by RUNZE Rung, and he discovered from coal tar. Rung. He also called this kind of the compound, just we can say it can be represented as follows: C6H5OH, or we can write it as follows. This is the phenol, and it is one of the simplest kind of the phenol. It is called as carbolic acid. So कार्बोलिक एसिड, तो रंग ने पर्टिकुलर सब्सटेंस को, इस कंपाउंड को कार्बोलिक एसिड भी कहा. इसी सीक्वेंस में अगर फर्दर बात करें, देन इट विल बी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल. देन on the basis of number of OH group, there are basically three kinds of the phenol. Here's the three kinds of phenol. Number one is your monohydric phenol. Mono means one and hydric group is OH group, means we can say that when the OH group exists, only one OH group, whenever just a phenol exists only one OH group over the benzene ring, then those are known as monohydric phenol. So we will say having only one OH group on benzene ring, those are known as just monohydric phenol. If we'll go with the example, then this is the monohydric alcohol, just phenol, simplest kind of the phenol as a carbolic acid. If we will go with the further, then we can take this one example also. We can take this example also, OH and NO2. This is also example of monohydric alcohol or chlorophenol.
there may as follows also, just OH and Br as a substituent. So this is about the monohydric phenol having only one OH group over the benzene ring. Now the time to discuss about the second type, that is the dihydric phenol. Dihydric phenol. Di means two, just we can say phenol having two OH group, two OH group over benzene ring, then those are known as just dihydric phenol. There are a lot of examples, but we'll take three basic important examples which are in your syllabus. This is the OH, this is the OH at meta position, and at the para position there will also two of OH, like this, OH and OH. So these are about the just monohydric phenol and dihydric phenol, and this was about the just meaning of the phenol and discovery about the phenol. So now we'll go with the further. The further is your as a trihydric phenol. Now the time to discuss about the trihydric phenol and what is the meaning of trihydric phenol. We'll go with this kind of the slide. इस स्लाइड में हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की ही बात करेंगे फर्दर. सो दिस इज द trihydric phenol, means we can say that having three OH group on benzene ring. बेंजीन रिंग पर आपके पास में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, देन दोज आर नोन एज ट्राइहाइड्रिक फिनोल. एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें तो ये आगे आपके पास में बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ये आता आपके पास में 1, 2, 3 पोजीशन में, ये आता आपके पास में 1, 2, 4 पोजीशन में, और ये आता आपके पास में 1, 3, 5 पोजीशन में. तो ये सब तीनों के तीनों आपके पास में, दिस इज द 1, 2, 3 पोजीशन, याद रखिएगा. दिस इज द 1, 2, 4 पोजीशन एंड दिस इज द 1, 3, 5. यू कैन सी 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो 1, 3, 5 पोजीशन पे आपके पास में ट्राइहाइड्रिक फिनोल होगा. दिस वाज अबाउट द जस्ट classification of the phenol. Now the time to discuss about the nomenclature of phenol. Nomenclature of phenol. If we go with the just phenol, then there are two systems for the nomenclature. One of the is your, you can say, common system. This is the common system. And another is your second, this is the IUPAC system. IUPAC system, it is also called as International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Common system and IUPAC system, it is also called as Geneva system. So first of all, if we'll go with the just nomenclature, then we'll take a lot of example.
and we'll take the common name in by using bracket, and rest of the will be in the form of without bracket as a IPC name. So this is the simplest kind of the phenol. This is the simplest kind of the phenol, number 1. This is the number 2. We can take with the side chain as a CS3. We can take another example by using substituent as follows. There may more than one OH group over the benzene ring. OH, and this is the OH. This is the 5th compound, just OH at meta position. This is the 6th compound over para position, like this, OH and OH. If we'll go the name with these compound, then the simplest name as a common name is carbolic acid. It's not carboxylic acid, it's a carbolic acid. IPC name will be either you can say phenol or benzol also. If we'll go with this kind of the compound, then this is the ortho position, 1-2 position. It is called as ocresol. This may be over meta position, then M-cresol, over para position, then it will be as a P-cresol. नंबर 3 पोजीशन पे होगा CS3 तो मेटाक्रेसोल, 4 पे होगा तो पैराक्रेसोल. आईपीसी नेम की बात करें तो पर्टिकुलर 2 मिथाइल फिनोल, ये आता है 2 मिथाइल फिनोल. इसकी बात करें तो 1-2, ये आता है आपके पास में कॉमन नेम ओ नाइट्रोफिनोल, ओ नाइट्रोफिनोल. आईपीसी नेम होगा आपके पास में 2 नाइट्रोफिनोल. इसकी बात करें तो कॉमन नेम आपके पास में आता है कैटेकोल, कैटेकोल. और कॉमन नेम के बाद में आईपीसी नेम आएगा बेंजीन. 1-2 डायोल, 1 और 2 पोजीशन पे है. इसके लिए बात करें तो आपके पास में होगा रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल. और आईपीसी नेम होगा आपके पास में बेंजीन 1,3 डायोल. इसकी बात करें तो आपके पास में आता है क्विनोल, क्विनोल. और आईपीसी नेम होगा आपके पास में बेंजीन 1,4 डायोल. तो ये था आपके पास में पर्टिकुलर इनिशियल कुछ प्रैक्टिस. इसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करें तो 7th कंपाउंड आपके पास में आता है पर्टिकुलर, कुछ इस टाइप से हो सकता है OH, OH, OH डाइहाइड्रिक फिनोल की फॉर्म में. ये कुछ इस टाइप से हो सकता है आपके पास में OH, OH और OH. कुछ इस टाइप से हो सकता है 9th कंपाउंड OH, OH एंड OH. और ये 10th कंपाउंड हम ले सकते हैं पर्टिकुलर कुछ इस टाइप से OH, NO2, NO2, NO2. तो ये थे आपके पास में फर्दर और फिनॉल के स्ट्रक्चर. इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम आपके पास में होता है पाइरोगेनोल, पाइरोगेनोल. आईपीसी नेम होगा आपके पास में बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, ट्राइऑल. इसकी बात करें तो आपके पास में पर्टिकुलर इसका जो नेम होगा वो हाइड्रोक्सी क्विनोल होगा. कॉमन नेम हाइड्रोक्सी क्विनोल, क्विनोल. कुछ इस टाइप से जस्ट कैटेको, रिसोर्सिनोल और क्विनोल. पहला पोजीशन में क्विनोल आ रहा है, इसको हाइड्रोक्सी के दिया आपने. आईपीसी नेम बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, इसके लिए नेम होगा. इसकी बात करें तो आपके पास में फ्लोरो, फ्लोरो ग्लूसिनोल कहेंगे, फ्लोरोग्लूसिनोल. और आईपीसी नेम की बात करें तो बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल कहेंगे. ये यहां अगर स्पेस कम है तो कुछ इस टाइप से ले सकते हैं हम लोग
बेंजीन 135, ये आ गया कॉमन नेम, बेंजीन 135 ट्रायोल। इसके लिए हम कहेंगे कॉमन नेम पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और आईपीसी नेम कहेंगे 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड। तो ये था आपके पास में पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल एज अ मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक विद अ सब्स्टिट्यूएंट आल्सो। हर एक स्ट्रक्चर को बड़े ही इंपॉर्टेंट ले, बिकॉज ये कंपाउंड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 135 लास्ट में ट्राइयोल, जिसको आपने फ्लोरोग्लूसिनोल कहा है। 135 ट्राइयोल फ्लोरोग्लूसिनोल, अच्छे से ध्यान दें। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्म में आपके पास में आ चुके हैं मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड। फिर आता है फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज टू इंपॉर्टेंट। तो So this is the structure of phenol. This is the structure of phenol. फिनॉल की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। बेंजीन रिंग के साथ में ये O आ गया और ये H आ गया। Here will presence of two lone pair like this, कुछ इस टाइप से। यहां बात करें तो पर्टिकुलर अगर OH ग्रुप की तो OH ग्रुप बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कुछ इसको ब्रॉडली ले लें तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिनॉल में अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास में बेंजीन, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया आपके पास में O और ये H। यहां ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास में आपको मालूम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बेंजीन रिंग से का तो इतना सही है कि sp2 हाइब्रिडाइज बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट अगर हम बात करें तो इस OH ग्रुप में O की, तो यहां पर्टिकुलर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। बट अगर बात करें तो यहाँ आपके पास में 2 लॉन पेयर है तो लॉन पेयर टू लॉन पेयर एंड इट विल बी लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, जिसके कारण पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर के 109 डिग्री हो जाता है। और ये वाली शेप OH ग्रुप की, OH ग्रुप की शेप आपके पास में बेंट कह सकते हैं आप या एंगुलर कह सकते हैं, एंगुलर शेप आ जाएगी OH ग्रुप के लिए, ये ध्यान रखें। जबकि बेंजीन रिंग पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आइसोमेरिज्म इन फिनॉल। फिनॉल में आइसोमेरिज्म की बात करें तो बेसिकली अगर कॉमन फिनॉल की बात करें तो
सिंपलेस्ट फिनॉल की बात करें तो मीन्स दैट इज द कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड कह दें या जस्ट यू कैन से फिनॉल। तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने के कारण से इनोलिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाए। तो ये था आपके पास में फिनोल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द O एंड H, या इस H को हम यूं शो कर दें। तो ये अगर H यहां शिफ्ट कर जाए कुछ इस टाइप से यहां, तो ये आपके पास में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग यहां हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगी, टोटोमेरिज्म कहेंगे उसको। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगा इनोल फॉर्म में। ये आ गया आपके पास में इनोल फॉर्म, डबल बॉन्ड इन एंड OH ग्रुप ऑल, और ये अब अपने आप में कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा O में, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। यहाँ कार्बन के लिए वैलेंसी 1 थी, पर्टिकुलर हाइट 1 कार्बन था, 4 वैलेंसी थी, और यहाँ आपके पास में कुछ कंडीशन इस प्रकार से आ जाएगी। ये था आपके पास में इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, और ये आपके पास में चेंज हो गया कीटो फॉर्म में, तो जिसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये था पर्टिकुलर रिगार्डिंग टू योर कार्बोलिक एसिड या सिंपलेस्ट फिनोल। इसके अलावा डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की बात करें तो डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ द आइसोमेरिज्म शो करते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में पर्टिकुलर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्पेशली, एंड कुछ some other phenol shows functional group isomerism also, functional group isomerism भी शो करते हैं। तो किस प्रकार से शो करेंगे, let's see. For this we can take the example, there are a lot of example. First of all, I would like to go with the just C6H6O2, another C7H8O, this is the most important one of these, your C6H6O2, another C6 just H7O, दोनों ही काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट कंपाउंड के रूप में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिनमें आपके पास में डाइहाइड्रिक आ चुका है, ये तो ये आ गया आपके पास में पर्टिकुलर डाई सब्स्टिट्यूटेड के रिगार्डिंग, और एक आप ट्राइहाइड्रिक का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन यू। पर्टिकुलर इस कंपाउंड को, इस प्रैक्टिस को सॉल्व करें तो आपके पास में आता है C6H6O2 के लिए यहां आपके पास में 3 पोजीशन आइसोमर्स होंगे कुछ इस टाइप से, OH ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन जिनको आपने कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनोल कहा है, मींस बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,3 diol and benzene 1,4 diol. These are the just 3 isomer for the C6H6O2, 3 isomer जिनको हम पर्टिकुलर पोजीशन आइसोमर भी कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। इसके अलावा बात करें तो आपके पास में सेकंड कंपाउंड के लिए यहाँ C7H8O, तो नंबर 1 तो वही आपके पास में 3 तो पोजीशन आइसोमर होंगे जिसको अपन ने कहा ओक्रिसोल, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 एंड 8 H8 हो चुका आपके पास में, और वन ऑफ दी O, यह आ गया ओक्रिसोल, यह आता आपके पास में एम-क्रिसोल मेटा पोजीशन पे, और यह आता आपके पास में पी-क्रिसोल, ये OH और ये CH3। इसके अलावा बात करें तो आपके पास में एक बेंजाइल अल्कोहल भी पॉसिबल है, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। और बेंजाइल अल्कोहल के अलावा एक और फंक्शन ग्रुप अगर करें, क्योंकि हमने कहा ना फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो बेंजाइल अल्कोहल के अलावा आपके पास में एक और आता है, दैट इज द एनिसोल, एरोमेटिक पर्टिकुलर ईथर भी कह सकते हैं इसको। सो फॉर दिस टाइप ऑफ द
formula, there will 5 isomer. इसके लिए 5 isomer होंगे, and for this it will be 3 isomer as a position isomer. So this was about the just your structure and isomerism in phenol, which is very important. So dear doctors and engineers, this was about the just initial part of the phenol. Phenol का initial introductory part था जिसमें phenol क्या होता है, phenol के types क्या हैं, particular हमने पढ़ा कि phenol का structure क्या होता है, phenol का nomenclature कैसे होता है, common और IPAC, and we have discussed about the isomerism as a just you can say ketoenol isomerism in simplest kind of the phenol as a carbolic acid, and further just you can say position isomers and function group isomers in the phenol. We'll meet in the next video with the just new topic as a preparation methods of the phenol. Till then, शुक्रिया, धन्यवाद. फिर मुलाकात होगी आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.